A very good morning to all of you. So, in the last class, we were studying that is what is the origin and the growth of the statistics, what is the meaning of the statistics, definition of statistics in the singular sense. Okay, so the above definition, the simply in singular sense, statistics refers to the statistical method. Okay, so these method are regarding the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of the data. Okay, so we have already discussed all these things as well as the what are the different stages of the statistical study and the related statistical tool we have already discussed. That is stage 1 collection of data, census of sample techniques, stage 2 organization of data, stage 3 presentation of data, stage 4 analysis of data, and fifth one is interpretation of data. As well as we have already discussed the what is the definition of the statistics in the plural sense. Okay, and we have already discussed what are the different characteristics of the statistics in the plural sense. So statistics are aggregates of the facts. Statistics are affected to a marked extent by multiplicity of the causes. Third one is statistics are numerically expressed. Fourth one is statistics are enumerated or the estimated according to a reasonable standard of accuracy. Fifth one is statistics are collected in a systematic manner. Statistics are collected for a predetermined purpose. And the last one is statistics should be placed in relation to each other. Okay, so we have already discussed all these things in the last class. So in today's class we are going to start what is the scope and the subject matter of statistics. Okay, so let's start. Nowadays the scope of statistics has spread to economics, business, industry, physics, chemistry and various other fields of knowledge. ठीक है ना, अभी क्या है nowadays हम देख रहे हैं जो statistics का scope है, उसका फ्यूचर है, उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो स्प्रेड होता चला जा रहा है. इकोनॉमिक्स में भी हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस में भी स्टडी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी कर रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड अदर वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज. जो भी अदर फील्ड है नॉलेज के, हम लोग हर जगह क्या है स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू टिपेट, ओके, स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट एवरीबॉडी एंड टच लाइफ एट मैनी पॉइंट्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है एंड टचेस लाइफ एट मैनी पॉइंट्स, और हर एक की क्या है लाइफ को टच कर रहा है एट दी डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स क्या है किसी भी पर्सपेक्टिव से या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ से वो बहुत दूर है. ठीक है, हर एक की लाइफ को वो अफेक्ट भी कर रहा है एज वेल एज इट टचेस ऑल्सो. सो स्कोप सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज. ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है स्टैटिस्टिक्स का उसको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, statistical methods and the applied statistics. Okay, so the scope and the subject matter of statistics is divided into 2, statistical method and the applied statistics. Okay, so first of all we will discuss with the statistical method. So statistical methods are method used in statistics. Statistical method वो होते हैं जो statistics में हम लोग यूज़ करते हैं. So according to Johnson and Jackson, statistics methods are procedures used in the collection, organization, summarization, analysis, interpretation and the presentation of data. Statistical method में क्या होता है, it is the procedure which is, जो ये procedure है जो कहाँ पे यूज़ करता है, कुछ collection करने में, organization में, समराइज़ करना हमको कुछ है उसमें यूज़ करना पड़ता है, एनालिसिस करना है, कोई चीज़ हमें एनालाइज करना है, कोई स्टडी को हमको कोई सिचुएशन को हमें एनालाइज करना है तो हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं. कुछ डेटा को हमको इंटरप्रिटेशन करना है, उसको चेक करना है, उसका कंक्लूजन देखना है तो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. एज वेल एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अगर हमको डेटा को क्या करना है डिफरेंट बार डायग्राम के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, टेबल के थ्रू हमें प्रेजेंट करना है तो भी हम लोग
स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो सिंपली स्टैटिस्टिकल मेथड आर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को हम लोग समराइज़ करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, देन कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं, डेटा को प्रेजेंट भी करते हैं। तो सारे ये क्या है, प्रोसीजर्स हम लोग स्टेप वाइज करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका कि स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो पहला हम लोग ने पढ़ा स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें हमें ये जानते हैं कि डिफरेंट मेथड्स यूज्ड होते हैं इन दी स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर गिवन बिलो। जो इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टैटिस्टिक्स में वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना है, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालिसिस करना है, एंड द लास्ट वन इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मीन्स हम लोग सिंपली डेटा को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि जो भी हमने डिफरेंट मेथड लगाए थे एनालिसिस में, जो भी मेथड लगाए थे उसके थ्रू जो भी रिज़ल्ट जो ड्रॉन हुआ है वो फेवर में है या डिसफेवर में है, दैट इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर एक्सेप्ट और दी रिजेक्ट। ओके, सो वी विल स्टडी ऑल द थिंग्स इन दी ब्रॉड इन दी नेक्स्ट चैप्टर्स। सो सिंपली इम्पॉर्टेंट मेथड क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हमको प्रेजेंट करना है, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट वन इज applied statistics. Okay, so it is concerned with the application of the statistical method used in the interpreting the data to make the decision in solving economic problem. Example, statistical studies related to the national income, agriculture production, etc. ठीक, statistical it is concerned with the application of the statistical method. जो भी हम लोगों ने डिफरेंट मेथड को पढ़ा, डेटा को कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, जो भी मेथड था उनका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है मतलब उनके एप्लीकेशन पे बात करती है कि उसका क्या एप्लीकेशन है, विच इज़ यूज्ड इन द इंटरप्रेटिंग द डेटा। जो डेटा को क्या है, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने में यूज़ होता है, टू टेक द डिसीजन इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि हम लोग क्या है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोई भी डिसीज़न हमें लेना होता है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम क्या है, कोई रिज़ल्ट पाएंगे। रिज़ल्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी इसको इट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी सो ये क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या होती है, रिलेटेड टू नेशनल इनकम से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है एक्सेट्रा। सो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक, नेक्स्ट वन इज़ साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. So this deals with the use of statistical method to make a problem under the study comparable and easily understandable using past and present data. Okay, so इसमें क्या होता है, that this deals with the use of statistical method. इसमें क्या करते हैं कि हम लोग different statistical method को use करते हैं to make a problem under study comparable. कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग कंपेरेबल की ओर लेके जाते हैं। मतलब कि अगर कोई भी थिंग्स है हमको ईज़िली नहीं समझ में आती तो हम उसको क्या करते हैं, किसी और चीज़ के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हम उसका कंक्लूजन ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं और फिर वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी हो जाती है। ईज़िली वो क्या है, समझ में भी आती है यूजिंग पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। जब हम पास्ट और प्रेजेंट डेटा के बीच में कंपेयर करते हैं फिर एज अ रिज़ल्ट हम क्या है उसको हम लोग ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक का सिंपल ही मतलब यही है कि कोई भी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, अंडर स्टडी रखेंगे, स्टडी करेंगे, उसकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे द डेटा विच इज़ रिलेटेड टू द पास्ट एंड द प्रेजेंट डेटा। कि जो पास्ट और प्रेजेंट के डेटा हैं उनके बीच में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे।
Next one is scientific applied statistics. So this deals with the use of statistical method to draw conclusion and take decision to deal with various social, political and economic problem. So this deal with the, ये किससे deal करता है, use of the statistical method, कि different statistical method को हम use करते हैं to draw the conclusion, कोई एक conclusion को draw करने के लिए and take decision, और decision लेते हैं टू डील विद दी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और जो भी प्रॉब्लम है जिससे सोशली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उन सारे को प्रॉब्लम को हम लोग उसको स्टडी करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का डिसीजन लेते हैं. ओके, सो इट इज़ अबाउट योर it is about your subject or the scope of the subject matter of statistics. So it can be classified into two categories: statistical method and the applied statistics. Okay, now the next topic is functions of the statistics. कि statistics के function क्या है, मतलब क्या काम करता है statistics, क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं. तो statistics perform very important function to conduct a statistical inquiry. स्टैटिस्टिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. एक कोई भी हमको इंक्वायरी करनी है, हमको कोई भी रिज़ल्ट नोन करना है, किसी भी प्रॉब्लम का आउटकम लेना है, तो ऐसी रिलेटेड इंक्वायरी के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज़ एन इंडिस्पेंसिबल टूल for an economics that helps to understand an economic problem. ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स को हम लोग एक टूल की तरह यूज़ करते हैं विच इज़ यूज बाय द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है, टूल की तरह इसको यूज़ करते हैं that helps to understand an economic problem. जो क्या है वो हेल्प करती है कि हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके. यूजिंग इट्स वेरियस मेथड्स, हम लोग डिफरेंट मेथड्स को लेते हैं. एफर्ट्स इज़ मेड टू फाइंड द कॉजेज़ बिहाइंड इट. ठीक है, और हम लोग डिफरेंट एफर्ट लगाते हैं कि हम कोई भी जो भी इसके कॉजेज़ हैं उसको फाइंड आउट कर सकें विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. किसके हेल्प के, कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कुछ क्वांटिटेटिव फैक्ट हैं, मतलब जो भी कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट हैं उनके हेल्प के साथ हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो किस में हेल्प किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में. कैसे, कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, तो उसको क्या है ये न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव डेटा में हमको देगा, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स देगा, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में कंपैरेटिवली स्टडी करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. Statistics enables an economics to present economic facts in a precise and definite form that helps in proper comprehension of what is stated. When economic facts are expressed statistical term, they become exact. Exact facts are more convincing than vague statement. Okay, so statistic enables an economics, कोई भी statistics है वो economics जो होते हैं उनको हेल्प क्या करता है, इनेबल करता है टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट, कि इकोनॉमिक फैक्ट को क्या है वो एक प्रिसाइज टर्म में और डेफिनेट टर्म में, मतलब एक उसका जिस्ट करके या उसको क्लियरली शॉर्ट मैनर में डेफिनेट फॉर्म में उसको स्टडी कर सके, प्रेजेंट कर सके. डैट हेल्प इन प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ व्हाट इज़ स्टेटेड, कि जो सिंपली हेल्प करेगा कि जो भी एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कोई चीज़ स्टडी है उसको वो एक प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करके किसी भी इकोनॉमिक फैक्ट्स की स्टडी कर सकता है. सो व्हेन इकोनॉमिक फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैटिस्टिकल टर्म, कोई भी अगर इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई या आपकी पॉपुलेशन की, पॉवर्टी की, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जब भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स में यूज़ हो जाएंगी दे बिकम एग्जैक्ट. फिर हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम ये बोल सकते हैं कि 2014 में कंट्री की पॉपुलेशन इतनी थी और 2020 में कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है. तो इकोनॉमिक फैक्ट्स हम जान गए कि नहीं, न्यूमेरिक टर्म में डेफिनेट फॉर्म में.
ये भी नहीं, एग्जैक्ट हम जान गए कि इतनी पॉपुलेशन थी और वो 2020 में इतनी इंक्रीज़ हो गई है। सो एग्जैक्ट फैक्ट्स आर मोर कन्विंसिंग दैन वेग स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हमको कोई भी आपको पता है कि अगर आपको एक एग्जैक्ट फैक्ट मिल जाए कि आपको ये कहीं पे रिटन मिल जाए 2014 में जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी थी, ओके, और कहीं आपको एक स्टेटमेंट मिले रहे कि इन इंडिया population is more and more increasing day by day, it continues to rapidly increasing, so in this ऐसे ऐसे, तो उस स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आपको एक न्यूमेरिक फैक्ट्स मिल जाए जिसमें आपको कोई भी नंबर्स वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या हो वो पता चल जाए। ओके, सो इट इज़ दी, so for instance saying that 300 people died in recent earthquake in Kashmir is more factual than statistical data, whereas saying 100 of people died is not a statistical data। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि अगर इसका एक एग्जांपल ये है कि 300 पीपल क्या हो गए, डाइड हो गए, डेथ हो गई है, अर्थक्वेक कश्मीर में अर्थक्वेक आया है तो उससे क्या है 300 पीपल डाइड हो गए हैं, इज़ मोर फैक्चुअल, ये क्या है ज़्यादा फैक्चुअल है, तो ये क्या है स्टैटिस्टिकल डेटा है क्योंकि हम लोग नंबर्स में बात कर दिए 310 पीपल, वेयर एज सेइंग 100 ऑफ पीपल डाइड इज़ नॉट स्टैटिस्टिकल डेटा। अब ऐसे 100 ऑफ पीपल, अब हंड्रेड्स ऑफ पीपल में मतलब आपका 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट डेटा तो हमको इससे नहीं मिल रहा है ना, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होगा। जैसे अभी आपको दे दिया जाए कि 2020 की पॉपुलेशन इतनी है, ओके, इतनी पॉपुलेशन वैल्यू दे दी जाए कि 135 करोड़, ओके, और आपसे बोला जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है, इट मे बी इन करोड़्स, वो करोड़्स में, एग्जैक्ट हमको कोई वैल्यू नहीं पता चल रही है कि वो 135 करोड़ है कि वो 150 करोड़ है। तो ये क्या है, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक टर्म्स का कोई नहीं होगा तो दैट विल नॉट बी स्टैटिस्टिकल डेटा, हम उसको स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं लेंगे। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई कि 135 करोड़ पॉपुलेशन है, इट मीन्स इट इज़ स्टैटिस्टिकल डेटा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज statistics help in condensing mass data into few numeric measures. So numerical measures helps to summarize data। जो भी न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डेटा को समराइज करने में। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन अ डेटा। ओके, देखिए क्या होता है, जो न्यूमेरिक मेजर्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं, मतलब हम जो नंबर्स में बात करते हैं वो उनको हम लोग ईजिली हम लोग समराइज़ कर सकते हैं कि इतना रेट है, इतना रेट है। सो फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन द डेटा। अब ये क्या है, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ये इम्पॉसिबल है कि वो अगर जो भी डेटा में इनकम दी है 100 लोग की, 500 लोग की, हर एक की इनकम को याद करना किसी के लिए भी क्या है, इम्पॉसिबल है। सो इफ़ द नंबर ऑफ़ पीपल इज़ वेरी लार्ज, तभी जब नंबर ऑफ़ पीपल बहुत लार्ज होंगे, अगर 10, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, तो आप यू कैन समराइज़ इन अ वन वे, आप एक बार उसको समराइज़ मतलब उसको आप रिमेंबर कर भी सकते हो। बट अभी क्या है 1000, 2000, 10,000 है, तो आप उसको समराइज़ एज वेल एज मेमोराइज़ कोई नहीं कर सकता है। सो येट वन अनदर कैन रिमेंबर ईजली इन समरी फिगर लाइक average income that is obtained statistically. In this way, statistics summarize and present meaningful overall information about the mass of data। ठीक है, अब क्या होगा, one can remember easily a summary figure। ठीक है, अब कोई भी easily ये याद कर सकता है, जैसे कि अगर दे दे कि below 10,000, ओके, below 10,000, below 50,000, बिलो 1 लाख, तो बिलो 50,000 कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है, इसमें कितने हैं 20 हैं, इसमें कितने हैं 30 हैं। तो ऐसे याद करना आपके लिए क्या होगा, सिंपल होगा। और कि जो ए पर्सन की सैलरी 35 है, 1000 है, बी पर्सन की 12,000 है, सी की इतनी है, डी की इतनी, एंड सो ऑन। और अगर हम एवरेज इनकम की बात कर दें कि अगर 100 पीपल हैं, 100 की हमने क्या देख ली,
इनकम देख ली, जो भी अगर इनकम है कुछ करोड़ में है, 1 करोड़ समथिंग, और अपॉन 100 करके हम उसका एवरेज निकाल के हम ईज़िली उसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टैटिस्टिक्स इसमें हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज it establish relation between the factors. Statistics is used in finding relationship between the different economic factor. Statistics क्या है? Different जितने भी economic factor हैं उनके बीच में क्या करता है? एक relationship create करता है. An economist may be interested in finding out what happens to the demand for a commodity when its price increases or decreases. ठीक है, कोई भी एक इकोनॉमिक्स क्या है वो इंटरेस्ट ले सकता है कि जब डिमांड ऑफ ए कमोडिटी when price increases or decreases, so what will impact on the demand of a commodity, कि कोई भी commodity की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या हो रहा है, और वो द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज व्हेन द एवरेज इनकम इंक्रीजेज. ठीक है, ये कि अगर किसी की एवरेज इनकम इंक्रीज़ होगी, तो अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ होती तो अल्टीमेटली उसका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा. और व्हाट हैपन्स टू द जनरल प्राइस लेवल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. ओके, कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्राइस लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा. सो सच क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर्ड इफ एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दी वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे सकते हैं जब उन दोनों फैक्टर के बीच में रिलेशन होगा. अब जैसे डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एवरेज इनकम के बीच रिलेशन है, प्राइस लेवल और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में भी रिलेशन है. अगर दो ऐसे चीज़ आ गए, दो ऐसे फैक्टर आ गए जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो हम लोग क्या है कि उसका कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते. उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ सम रिलेशनशिप. सो सच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ देयर इज रिलेशनशिप between the economic factor that have been stated above. Whether such relationship exists or not can be easily verified by statistical method. कि उनके बीच में relationship exist अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, but हम उनको क्या है empirically उसको हम लोग proof कर सकते हैं through the statistical method. Okay, now the next one is it help in formulation of plans and policies. So sometimes formulation of plans and policies रिक्वायर दी नॉलेज ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड. कभी कभी आपको पता है कि जब भी कोई भी पॉलिसीज़, जैसे हम लोग घर में क्या है कोई बजट प्रिपेयर करते हैं अपने घर का, या हम लोग अपना कुछ देखते हैं एक्सपेंडिचर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर को भी लेके चलते हैं कि आज इतनी सेविंग कर लेते हैं, कल हमारा काम आएगा. आज इतना मनी क्या करते हैं उस जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो फ्यूचर में भी काम आएगा. तो हम लोग जो भी गवर्नमेंट भी क्या करती है, कोई भी पॉलिसीज़ प्लान करती है, तो इट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड. उसका फ्यूचर का भी नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एन इकोनॉमिक प्लानर हैज़ टू डिसाइड इन 2005 हाउ मच द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस इन 2010. ठीक है, एक इकोनॉमिक प्लानर है, वो क्या है, वो ये डिसाइड करता है 2005 में ही कि वो कितना इकॉनमी में प्रोड्यूस करेगा इन 2010. सो स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी, कि हम लोग 2005 में कितना प्रोड्यूस करेंगे और 2005 में ये डिसाइड कर लेंगे कि 2010 में कितना टन्स प्रोड्यूस करेंगे. तो ये क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया. सो थ्रू विच वी कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट द प्लान एंड पॉलिसीज. इन अदर वर्ड्स, वन मस्ट नो दैट व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंजप्शन in 2010 in order to decide the production plan for the economy 2010. In this situation, one might make subjective judgment based on the guess about the consumption in 2010. Alternatively, one might use statistical tools to predict consumption in 2010. That could be based on the data of the consumption of the past year or of the recent year obtained through surveys. Okay, so in other words we can also say that one must know, ये हमें ये पता होना चाहिए कि the expected level of consumption
जो लेवल का कंजप्शन है 2010 इन ऑर्डर टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द इकोनॉमी फॉर 2010। अगर हम लोग 2010 में कुछ प्लानिंग की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो हमें पता होना चाहिए कि 2010 में कितना लोगों का कंजप्शन होना है। इन दिस सिचुएशन वन माइट मेक सब्जेक्टिव जजमेंट, उस टाइम वो उसको क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्टिव जजमेंट करना पड़ेगा विच इज़ बेस्ड ऑन दी गेस अबाउट द कंजप्शन इन 2010। वो उसमें क्या करेगा, एक गेस करेगा, मतलब जो 2010 में प्रोड्यूस करने वाला है कमोडिटी, वो 2010 के पूरे होल ईयर के लिए क्या करेगा, एक अजम्पशन लेके चलेगा ना कि इतनी कमोडिटी का कंजप्शन होगा। सो ऑल्टरनेटिवली वन माइट यूज स्टैटिस्टिकल टूल, वो क्या करेगा, कोई ऑल्टरनेटिवली एक स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करेगा टू प्रिडिक्ट दी कंजप्शन इन 2010, कि 2010 में कितना कंजप्शन होगा, उसके लिए वो स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करेगा। दैट कुड बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कंजप्शन ऑफ पास्ट ईयर और ऑफ द रिसेंट ईयर ऑब्टेनिंग थ्रू सर्विस। वो डेटा क्या होगा, पास्ट ईयर का होगा या रिसेंट ईयर का होगा, विच इज़ ऑब्टेन थ्रू दी सर्वेज। वो सर्वेज के थ्रू डिफरेंट सर्वे करके ही वो ऑब्टेन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ द impact of policies. Today we increasingly use statistics to analyze serious economic problems such as rising prices, growing population, unemployment, poverty, etc. to find measures that can solve such problem. Further, it also helps to evaluate the impact of policies in solving the economic problem. So today we increasingly use statistics. हम लोग डे बाय डे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किए जा रहे हैं टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, सच एज की जो प्राइस राइज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई है, पॉवर्टी इंक्रीज कर गई, टू फाइंड द मेजर्स दैट कैन सॉल्व दी सच प्रॉब्लम, कि हम ऐसे कोई मेजर्स को ले लें जो इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। फर्दर इट ऑल्सो हेल्प टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़। फर्दर क्या है, ये सारे पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट होगा इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सारी पॉलिसीज़ क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन होगा थ्रू विच वी कैन सॉर्ट आउट ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, सो फॉर एग्जांपल इट कैन बी ascertained ईजिली यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कि हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करें वेदर द पॉलिसी ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज इफेक्टिव इन चेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और नॉट। ओके, कि ये पॉलिसी चेक करने के लिए कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की कितनी प्रॉब्लम है। ओके, सो वी विल सी द रिलेशन बिटवीन दी बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। So statistics comprehend the numerical data through intersectoral and intertemporal comparison. So intersectoral comparison refers to the comparison across the different sector of the economy. Okay, तो statistics क्या करता है, intersectoral और intertemporal comparison भी करता है, जिसमें क्या करता है कि intersectoral comparison का मतलब होता है कि comparison अक्रॉस दी डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। जितने इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर हैं इनके बीच में क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखना। स्टैटिस्टिक्स वुड हेल्प टू टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें हमको स्टैटिस्टिक्स हमारी ये हेल्प करेगा कि वो मैग्नीट्यूड बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, कि रूरल एरियाज़ में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अर्बन एरिया में कितने अनएम्प्लॉयड हैं। रूरल एरियाज़ में फॉर एग्जांपल अगर 60% और 66% अनएम्प्लॉयड हैं तो इसमें कितने अनएम्प्लॉयड हैं। अगर यहाँ पे रूरल में आपके अप्रॉक्स 60% अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आपके अराउंड 30% अर्बन में है। तो जो न्यूमेरिक टर्म्स में हम पा गए, ये क्या होता है, थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करने के बाद ही वी कैन ईजिली गेट दी वैल्यूज़ इन दी न्यूमेरिक टर्म्स, की हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैटिस्टिक्स वुड हेल्प टू टेल दी मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की
उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी क्वांटिटी में लोग रूरल और अर्बन सेक्टर में इकॉनमी में क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द प्रॉब्लम ऑफ ओवर टाइम, कि इंटरटेम्पोरल मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड में कि अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम, कि टाइम के चेंज होने के साथ कि प्रॉब्लम में कितने, प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड में, कोई भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, कि टाइम के चेंज होने पे कितना ज़्यादा उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल, मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ द रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिफर टाइम इन डिफरेंट टाइम पीरियड, कि मेकिंग कंपैरिजन हमको ये करना है कि रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंट टाइम पीरियड में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इंटरसेक्टोरल हमने ये पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट सेक्टर में, मतलब रूरल सेक्टर में कितनी है, अर्बन सेक्टर में कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड। इंटरटेम्पोरल में हमने क्या पढ़ा है कि हम ये कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में, अगर 2014 में रूरल में कितने थे, अर्बन में कितने थे, 2018 में रूरल में और अर्बन में कितने थे, 2020 में रूरल और अर्बन में कितने थे, कि डिफरेंट टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। So through the functions of these statistics, we can easily understand what are the problem and how can we sort out and the overcome from all the problem. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.